Hello my dear friends, today we are going to start our next topic. What is it? Trigonometric functions. Okay, what is it? Trigonometric function. आज से हम क्या चालू कर रहे हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं, which one? Trigonometric function. आपको मैंने फंक्शन पढ़ाया था. फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन को अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में अगर देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल कॉम्बिनेशन रहा, जैसे अगर हम एक टर्म लेंगे जैसे लाइक ax² + bx + c = 0, that's the quadratic equation. That's the quadratic equation. Why? Because here is the power is 2. That's why we say that is the quadratic equation. But first of all, it is a function. Why function? Because in this term there is a x is a variable. It means this term consists of the combination of variables. That's why we say that this term is the function, and whenever this function is the equation. Why equation? Because this function consists of the two sides, left side and right side, and both the sides are separated by the equal to symbol. That's why we say that equation, and before the equation that the function, and before the function that's the term, and before the term we have to say that how we say that equation as the function. There is a combination of variables. Hope so you understand that thing, and it's in the form of relations and set. We learned that thing in the last video, in the last function. Okay, लास्टली हमने देखा था कि हम फंक्शन को कैसे एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग द सेट एंड रिलेशन. हमने पढ़ा था 1 to 1, 1 to many, many to 1. Very easy, very clear. See here, today we are going to start with trigonometric function. Now question arises here, sir, what is trigonometric function? Don't be confused. Very easy. See here, trigonometric function. If you distribute that word trigonometric one by one, if you distribute and separate that word trigonometry, then see here, 3 means what? 3 means 3. Simple funda. 3 means 3. Okay, 3 means 3 मतलब 3 होता है. ठीक है, देखो इधर. Then gono means what? Gono means what? Angles or side. What is it? Gono means angles or side. और metri means what? Simple measurement. It means what? The measurement of angles. That means measurement of 3 angles or 3 sides is called what? Trigonometry. Fine. So understand what is trigonometry? The measurement of 3 angles or side. Measurement of 3 angles or side is our trigonometry. Now we have to see that the trigonometric function. How we analyze and how we draw the trigonometric function by using this angles or side. See here, simple funda. Okay, we have to learn that. First of all, we have to learn the trigonometric ratios. We have to learn first trigonometric ratio. How we solve the trigonometric functions and how we solve the trigonometric ratio by using our angles and sides. See here, what is it? We draw a right angle triangle. See here, we draw a right angle triangle. What is it? Triangle ABC. See here, triangle ABC. Triangle ABC is right angle triangle. Why? Because it actually consists of the angle 90 degrees. See here, this side AC is our hypotenuse. See here, this side AC is our hypotenuse. This side AB is our perpendicular. You know about the perpendicular very well. Perpendicular is what? Any horizontal line, any vertical line intersect to the vertical line. It means what? Any perpendicular line, any vertical line touch to the horizontal line, that's create a perpendicular. Okay, and perpendicular consists of the 90 degree angle. See here, अगर हम कहेंगे A और B क्या है? परपेंडिकुलर, जिसको हम ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं. AC क्या है? हाइपोटेन्यूस है. और C here, BC क्या है? BC अपना बेस है. Okay, ना BC is our base और adjacent side. ठीक है. By using that, we have to learn how many function arise by using the trigonometric ratios. Okay ना, हमको पता होना चाहिए कि हम कितने फंक्शन को अरेंज कर सकते हैं. देखो इधर हमारा एक सिंपल सा फंडा है. देखो आपको इजीली समझ जाने के लिए, इजीली कॉन्सेप्ट के लिए, इजीली फॉर्मेटिंग. व्हाट इज इट? सी हियर, पंडित बद्री प्रसाद. ओके ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी टो. अभी आप बोलेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं. अब देखो इधर मैं क्या बोल रहा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी टो. अभी देखो इधर अगर मैं इस वर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये सिर्फ आपके समझ के लिए, जिससे क्या आपको इजीली समझ में आएगा कि हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे एनालाइज कर सकते हैं. देखो इधर पंडित बद्री प्रसाद. ओके ना, पंडित बद्री प्रसाद मींस whatever. Pandit Badri Prasad means here is the P is what? Perpendicular. Badri means what? B is our base. Simple. Then Prasad means what? Also perpendicular. See here, what I want to say? Pandit Badri Prasad means what? Perpendicular base, perpendicular. The second is har ball means hypotenuse and also base. Okay na? What is it? Pandit Badri Prasad means perpendicular base, perpendicular. Then har ball means hypotenuse and base. And the last thing is Sona Chandi told. Sona Chandi means what? S for sin. What is it? S for our function sin theta. We see that as a theta. Here we get the angle theta. Okay, fine. We have to know that अगर हमको किसी भी फंक्शन को अगर डिनोट करना है तो हमको उसके साथ एंगल लेना ही पड़ेगा. अदरवाइज वो फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा. वो एक एक्सेप्शन फैक्ट होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का. हमको अगर कोई भी फंक्शन दिखाना हो, साइन हो, कोई भी हो, उसके साथ हमको एक एंगल लेना जरूरी है. बिकॉज हमने अभी मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स एंड
sides, because we have to measure that combination of angles and side. Okay, see here, what is it? Pandit Badri Prasad is BPPBP, HHB means har bol, Sona Chandi told S for sin theta, Chandi means C for cos theta, C for cos theta, told means what? T for tan theta. Okay, very easy thing. See here, मैंने क्या बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल फंडा को पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तो ओके ना. पंडित मींस व्हाट? P means perpendicular, बद्री मींस व्हाट? B means base, then प्रसाद means what? P also perpendicular. See हर बोल means what? Hypotenuse base. Very easy. Then सोना चांदी टोल means what? S for sin theta, C for cos theta and T for tan theta. Very easy. See here, if you have to analyze that function by using that right angle triangle, see here, first of all we get the sin theta. अगर हमको इस ट्रायंगल से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हमको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे? देखो इधर सिंपल फॉर्म हमने टेबल निकाला जिसमें क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी टोल. सी हियर, सिंपल थिंग. तो इसका मतलब क्या होगा? sin थीटा मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. वेरी इजी. क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. मतलब क्या होगा? इधर देखो परपेंडिकुलर क्या है अपना? परपेंडिकुलर इज व्हाट? A upon B, sorry, AB is our side and also the perpendicular. Means what? AB is the perpendicular and hypotenuse what? Hypotenuse is our AC. Simple thing. Hope you understand that thing. What I want to say, मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो इधर सिंपल फंडामेंटल रेशियो का पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हर बोल हाइपोटेन्यूज बेस सोना चांदी टोल. Simple thing. What is it? Sin theta, cos theta, tan theta. Okay, and if you get any three angles, any three functions, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, हमने सिर्फ 3 लिए हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा. और 3 है, उसको कैसे लिखेंगे? सिंपल है. देखो इधर फर्स्ट sin थीटा मतलब क्या होता है? sin थीटा मतलब p by h means perpendicular hypotenuse. Now second is what? cos थीटा. It's very easy. आप बता सकते हो क्या होता है? base upon hypotenuse. Very easy. base upon hypotenuse. Okay ना? fine. अभी देखो इधर base क्या है अपना? base को हम adjacent side बोल सकते हैं, ठीक है? base क्या है? BC है. That's why here is BC. Side BC. Then see here, our hypotenuse is what? Hypotenuse is our AC. Then third is function is what? Third function is what? Tan theta. Tan is very important in this trigonometric function. You have to know the tan formulas. We see here, हम देखेंगे आगे tan के फॉर्मूले क्या होंगे. बहुत ज्यादा जरूरी है. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे पूरे आपका सिलेबस होगा 11th और 12th में, ठीक है? इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझना बहुत जरूरी है. देखो तो मैं क्या बता रहा, sin मतलब क्या होता है? P by h. cos मतलब क्या होता है? B by h. और tan मतलब P by B. See here, P means perpendicular, H means hypotenuse and B means base. Very easy. ठीक है? देखो इधर cos मतलब क्या होता है? cos theta is base upon hypotenuse means BC upon AC. See here, और base is what? BC and hypotenuse over AC. See here, now this third thing is tan theta. अब बताओ tan theta मतलब क्या होगा? Very easy. आप बताओगे सर tan theta मतलब P by B means perpendicular base होगा. सही जवाब है. क्या होगा? P by B मतलब क्या? perpendicular upon base. perpendicular क्या होता है? देखो इधर perpendicular is what? AB. It means what? AB upon base is what? base is our BC. Okay, hope you understand me. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. मैं क्या बता रहा, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर लिखना है और उसको अगर हमारा इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हमको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर लिखना है तो हमको पहले टेबल पता होना चाहिए. तो टेबल ड्रा करना बहुत इजी है. क्या करने का? पहले लिख देने का पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी टोल. पंडित मींस व्हाट? परपेंडिकुलर, बद्री मींस बेस, प्रसाद means P, then हर बोल means hypotenuse base, सोना means what? S for सोना and S for sin theta. चांदी means C for चांदी and C for cos theta. Toll means what? T for toll and T for tan theta. Okay, also understand three functions. What is it? Sin theta means P by H, cos theta means B by H, and tan theta equals to P by B. And we have to write that things by using that right angle triangle. Now see the fourth function. अभी fourth function क्या होगा? Fourth function होता है cot. क्या होता है? देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ? cot theta होता है. ठीक है ना? क्या होता है? cot theta होता है. फिर cot theta क्या होगा? सिंपली आपको पता होना चाहिए cot theta क्या होता है. cot theta is the inverse of tan theta. ओके ना? ये जो cot theta है ये tan के अपोजिट रहेगा. कभी भी सोच में रखने का कि cot जो है वो tan के अपोजिट में रहेगा और tan जो cot के अपोजिट में रहेगा. सिंपल थिंग. व्हाट इज इट? अगर tan theta इक्वल्स टू P by B हुआ तो cot मतलब क्या होगा? सिंपल B ऊपर जाएगा P नीचे आएगा. मतलब क्या होगा? P by B होगा. सिंपल. मैंने क्या बताया? tan और cot एक दूसरे से रिवर्स में रहते. अगर cot B by B होगा तो tan P by B होगा और अगर tan अगर P by B होगा तो ऑब्वियसली cot मतलब क्या होगा? B by P होगा. इसमें बेस upon perpendicular. See here, base is what? Our base is BC. Perpendicular is AB. Simple thing. You have to understand that thing. Tan and cot both are the inversely proportional to each other. Means what? अगर tan की वैल्यू जो होगी वो inversely वैल्यू किसकी होगी? cot की होगी. अगर tan की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा, tan थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो cot की वैल्यू क्या होगी? 1 by 1 1 ही होगी. अगर देखो हमने इसे कर
इक्वल्स टू 1/45 डिग्री, इसमें cot का मतलब क्या हो गया, फुट पे ऊपर आ जाएगा, सिंपल फुट पे डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, tan और cot एक दूसरे को रिवर्स में है, ठीक है। देन सी द फिफ्थ फंक्शन, ओके, सी द फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा, देन फर्स्ट इज sin cos tan cot, देन sec थीटा, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि tan और cot एक दूसरे को रिवर्स में है, वैसे ही sec और cos, देखो इधर ये sec और cos ये दोनों भी एक दूसरे को क्या होंगे, रिवर्स में होंगे। जैसे कि tan और cot का रिलेशन है, वैसे ही sec और cos का भी रिलेशन है, ठीक है। देखो इधर अगर cos का b/h होगा, इसमें b बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, तो फिर cos sec का क्या होगा, इजीली व्हाट इज इट, h/b, बिकॉज़ h ऊपर जाएगा b नीचे आएगा, देखो इधर h/b, वेरी इजी ना। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ac एंड बेस इज व्हाट, बेस इज bc। होप सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको ये सभी चीजें इजीली और सिंपली समझ में आनी चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, वेरी इजी। हम साइन कैसे निकाल रहे हैं, बाय यूजिंग द टेबल। आपको ये पहले टेबल मालूम होना चाहिए, जिसको ये टेबल पता चल गया वो समझो ट्रिगोनोमेट्री में सब समझ गए, ठीक है। जिसको ये टेबल समझ में आ गया वो ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ समझ गया। आपको टेबल पता होना चाहिए। मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी ढोल, वेरी इजी, ठीक है। देन देखो हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, देखो इधर नेक्स्ट फंक्शन में इधर देख रहा है, देखो नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, इधर देखो फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉरी 1 2 3 4 5 हो गए। अब 6 हमारा लास्ट फंक्शन क्या है, देखो लास्ट फंक्शन इज अवर लास्ट फंक्शन इज सी हियर, लास्ट इज कोसेक, ठीक है। हमारा देखो फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज कॉस, थर्ड इज टैन, फोर्थ इज कॉट, फिफ्थ इज सेक थीटा एंड सिक्स्थ इज कोसेक थीटा। और ध्यान में रखने का, किसी भी फंक्शन के बीच में किसी भी फंक्शन के साथ एक एंगल होना जरूरी है, तभी उसको हम स्पेसिफाइड फंक्शन बोलेंगे, ओके, ठीक है। दिस हियर हम कौन सा ले रहे हैं, कोसेक थीटा ले रहे हैं। देखो मैं इधर लिख तीसरा, देखो क्या होता है, कोसेक थीटा इज द सिक्स्थ एंगल, ओके, सिक्स्थ फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये जो कॉट है ये टैन को क्या है, रिवर्स आएगा, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये जो सेक है, सेक एंड कॉस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर सेक की वैल्यू 1/40 रहेगी तो कॉस क्या रहेगी, ऑब्वियसली 40 रहेगी। अगर सेक की वैल्यू 2/3 है तो कॉस क्या होगी, 3/2 होगी। मतलब एक दूसरे को रिवर्स करते हैं, ठीक है। अभी लास्ट इज व्हाट, कोसेक थीटा। तो ये कोसेक क्या होगा, ये कोसेक इजीली इस साइन को ऑपोज करेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये टैन कॉट को करेगा, सेक कॉस को करेगा और साइन कोसेक को करेगा। अगर साइन मतलब p/h होगा तो cos कोसेक मतलब क्या होगा, h/p होगा, मींस हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या रखना, देखो इधर ac, परपेंडिकुलर इज व्हाट, आवर ab, ओके। होप अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। वेरी इजी है। हमारे जो हमने देखी अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को बहुत ज्यादा इजी है। देखो इधर कैसे होता, हमने क्या लिया, टेबल लिया, सबको ये टेबल जरूरी है, सबको ये टेबल जानना जरूरी है कि टेबल मतलब हमने कैसे निकाला। टेबल का सिंपल फंडा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट स्टेटमेंट, व्हाट इज इट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी टोल, वेरी इजी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी टोल, ये जिसको पता चल गया, ये तीन फंक्शन से हम बाकी के तीन निकाल सकते हैं। व्हाई, बिकॉज़ हमको पता है कि साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, और टैन का क्या होता है, कॉट होता है, वेरी इजी, ठीक है। सो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझना जरूरी है, अपने बुक में नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे और अलाइड एंगल्स फॉर यू। सो होप सो अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर वेलुएबल रिस्पांस, थैंक यू।